just for reference because you guys have not seen, so इसके लिए दिखाने के लिए how it looks like. If we want to rig any purchase to advantage, तो उसकी wires को winch पे लेके जाने के लिए you need the lead blocks. चलो ये तो था. Now we were here, so we'll complete this today. So let's see test and periodical examination. So we have understood when this test is to be done before being taken into use for first time, or if the crane or your lifting gear, lifting appliance undergoes any repairs, or 5 years. All the lifting appliances including all parts should be tested by a competent person. Second, all lifting appliances shall be thoroughly examined. Now, examination में आपने कहा था testing तो हमने देख ली कि there are two type of test, static testing and dynamic load test. कि उसके अंदर actual weight को उठाया जाएगा and it is moved as the crane has to move. So in same way, and then we see. Second is the examination. That every 12 months, every year, your gear must be examined. अब examination में क्या? Yes, that he will come, he will see कि आपकी जो crane है उसकी jib, wires, sheaves, blocks कैसे दिखते हैं, किसी में कोई crack तो नहीं है. So this examination, even as a chief officer, if you ask me, he is also competent. He also can go through and have a look कि कहीं पे कुछ, because you are using the cranes, but it is nowadays they say no. So it's normally like a surveyor comes, he will check that all your cranes are. It is just a examination, not the testing part. So every 12 months this is to be done, every 5 years. Objective क्या thorough examination? Objective of thorough examination is to ensure the lifting appliance or the lifting gear so examined is of good mechanical and sound construction. That's the whole aim. And made of strong and sound materials. Of course, when it is made, when it is installed on the ship, that time of course they make sure that it is from a recognized company जिसकी सारी की सारी अच्छी background है. They are making good cranes. So when it is installed and during the course of time, of course initially तो हमने check कर लिया कि this was made of strong construction, but you know we are using it at sea. The environment is very corrosive. But उसको इस condition में रखा भी गया है कि नहीं है. So that's why the thorough examination is that it remains in a good condition, correct configuration and condition according to the manufacturer's instructions. That's the objective of a thorough examination. The examination shall be carried out as carefully as conditions permit so as to arrive at a reliable conclusion as to the safety of the parts examined. Of examination में when sometimes the surveyors they feel कि normally it is if they feel any of the sheave which are cracked दिख रहा है, so sometimes they do even a hammer test. It be very common if you put a hammer, if there is a crack in the plate, so आपको उसकी आवाज से पता लग जाएगा. So those guys are experienced. अगर उनको कुछ डाउट होता है then they will see कि नहीं भी इसको डिस्मेंटल कीजिए, खोलिए, इस ब्लॉक को खोलिए, शीप्स को चेक करते हैं, कुछ अंदर डाउट दिख रहा है. So that is very good thing. If they spend so much time, तो हमारी सेफ्टी के लिए है. So this is what the thorough examination is basically. Thorough examination means और तो हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया. Now thorough examination किया कैसे जाएगा? What is the purpose or how it is to be done? So means a visual examination. Thorough examination कोई पूछे what is thorough examination? Sir, it's basically a visual examination supplemented if necessary by other means such as hammer test carried out as carefully as conditions permit in order to arrive at a reliable conclusion as to the safety of parts examined. And if necessary, part of the lifting appliance and gear shall be dismantled. कुछ भी अगर कहीं पे भी डाउट आता है किसी चीज़ को कि नहीं यार ये ठीक नहीं लग रहा है, लगता है कुछ इसमें इसकी स्ट्रेंथ में प्रॉब्लम है. वेरी कॉमन यूज टू बी द व्हाट वी कॉल द goosenecks of these derricks, heels of the derricks. So एग्जामिनेशन होता था, कहते नहीं भी इसको डेरिक की हील को उठाओ, इसको बाहर निकालो, हमें चेक करना है, देखना है. So this is what basically your thorough examination is. He has to see thoroughly. इसलिए आपको now it is gone to the surveyors कि भाई some competent person जिसको knowledge है, जिसके पास equipment है, those guys will only come for the examination. फिर वो आपकी entry बना देगा chain register. Now requirements of thorough examination: the amount of proof load to be adopted during the test, the greatest possible proof load for hydraulic crane, and the test procedure and requirements of lifting gear. So ये आपकी thorough examination की जो
probably basically condition. And after being tested with proof load, जब आपने test करना है, after being tested with proof load means I am going little extra, 25% extra. Each part of the lifting appliance or lifting gear shall be examined so as to ensure no part of the lifting appliance has been damaged during the test. अब 20 टन की क्रेन है, मैंने 25 टन का उसके ऊपर लोड लगाया है, so there is a possibility that some part may get damaged. अब Americans जो हैं, they think in a different way. They say no, why put extra load? Why do testing every 5 years? Every 5 years you are putting extra 25% of the load, तो उसकी तो स्ट्रेंथ में फर्क आएगा. They say no, you do it only if the crane is damaged. एक बार इनिशियल कीजिए, जब वो नहीं बनती है. सेकेंड, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट डैमेज, नो रिपेयर, नो टेस्टिंग. व्हाई पुट एक्स्ट्रा लोड? सबकी अपनी अपनी सोच. अब इसकी कंपोजिशन क्या है, अगर आपने देखना है, यस, टेस्ट एंड थॉरो एग्जामिनेशन इज कंपोज्ड ऑफ थॉरो एग्जामिनेशन फर्स्ट, टेस्ट एंड री एग्जामिनेशन. Test is required by law. The proof load test. Objective of the test is to demonstrate the lifting appliance or the gear is structurally sound and is fit for use which it is designed for. Isn't it? This is what the basic objective of the test is. That यार जब आपकी जो क्रेन है, जो गियर है, जो भी है, डेविड है, डेरिक है, जो भी आपके इक्विपमेंट है, I should know that it is of structurally sound. ये तो है नहीं कि कार्गो गियर चलाने आए तो बेंडी होगी. And re-examination shall be conducted after the proof load test with an aim to check whether there are any cracking, deformation or loosening or damage to the structural connections. तो इसके लिए re-examination भी उतना ही जरूरी है कि आपने टेस्ट किया, सर ठीक है, crane is working beautifully, but the good surveyor will say कि उसके जो parts हैं जहाँ उनको suspicion हो सकता है, उसको check कीजिए. Re-examination is to ensure lifting appliance is still structurally sound and stable for use until the next cycle of test. And competent persons shall supervise and witness testing and shall thoroughly examine the appliance. Every item of loose gear shall, before being taken into use for first time, again be tested, thoroughly examined and certified. Loose gear में भी वही चीज़, loose gear जो आपका उसके सारी attachment है, winches हैं, सब कुछ है, उन सब का examination is the same process. Duration, ये तो हो गया हमने when we are going to do, how we are going to do, उसकी composition क्या है, examination, testing and re-examination. The duration, every lifting appliance, every item or loose gear shall be thoroughly examined at least once 12 months. And particulars of this examination shall be entered, because जो भी आप काम करते हो उसको लिखना भी है. तो वैसे तो सर्वे ही आपको कहेंगे, otherwise the captain asks the surveyor कि okay, please make an entry here that you are satisfied, you have checked this, and certificate भी issue होता है. Retesting and thorough examination of all lifting appliance, every item should be carried out after substantial alteration or renewal or after repair, and in case the lifting appliance at least once in every 5 years. So ये तो आपकी testing का, वो examination का था. ये हमने देख लिया है what is loose gear and other removable accessories. So these are the all things what we call loose gear. Includes all these small items which are basically used for in with the gear for lifting, but हम उसको निकाल भी सकते हैं, separate भी कर सकते हैं. Ropes, I think we have read enough. So no rope shall be used for dock work unless it is of suitable quality, free from patent defects, and in case of wire rope, it has been tested, examined by a competent person. So कोई भी wire, कोई भी चीज़ हो, उसके लिए भी rule regulation straightway is written that it has to be tested to destruction and safe working load obtained by dividing the factor of safety. ये भी नहीं है कि वायर जो है, so naturally this is what the procedure we follow, and ये procedure सब फैक्ट्री जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है उसको भी है कि भी आप वायर मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसका डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कीजिए, ब्रेकिंग स्ट्रेस निकालिए, एंड फिर उसका सेफ वर्किंग लोड या सेफ्टी फैक्टर बताइए, एंड वो सर्टिफिकेट भी जहाँ आपने सप्लाई करना है वहाँ होना चाहिए. So that's why this is what you are doing on the ships, isn't it? So every wire of lifting appliance, loose gear shall be inspected by responsible person every 3 months. अब responsible person chief officer is enough. अब उन्होंने कह दिया कि आपकी जो वायर्स हैं लूज गियर हैं, every 3 months please examine, isn't it? अगर बाई चांस उसमें कुछ आपको डिफेक्ट दिखता है,
एनी वायर इज ब्रोकन, हो सकता है एक वायर, दो वायर या कुछ भी है, फिर वो कहते हैं कि इसका एग्जामिनेशन 3 महीने की बजाय एवरी मंथ कीजिए। अगर आपको डिटोरिएशन लगती है, कुछ गड़बड़ दिखती है, प्लीज चेंज। अदरवाइज सब ठीक है, वायर इज एवरीथिंग इज गुड, देन every 3 months this wire should be inspected। and वो सेम चीज, वायर रोप टू बी डिक्लेयर्ड अनफिट, ये आपका एज पर द डॉक सेफ्टी है, डॉक लेबर रेगुलेशंस। it is to be declared unfit and no rope shall be used for dock work if any length 8 times the diameters total number of visible broken wires exceed 10%। तो यही चीज हम यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग, फॉर seeing that this wire is in ठीक वर्किंग कंडीशन में है या उसको चेंज करना है। वायर ऑल्सो डिक्लेयर्ड अनफिट इफ शोज साइंस ऑफ एक्सेसिव वियर, कोरोजन और अदर डिफेक्ट्स। अब आपका आ गया, ये सारा आपने एग्जामिनेशन तो कर लिया, सारा काम भी कर लिया, अब इसकी जो पेपर वर्क है, इसकी जो रिकॉर्ड कीपिंग है, उसको हमने कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है। सो देयर इज अ बुक, देयर इज अ रजिस्टर, जिसे बेसिकली उसका पूरा नाम है रजिस्टर ऑफ मशीनरी, चेन्स एटसेट्रा एंड वायर रोप्स, बट शॉर्ट फॉर्म में हम इसे चेन रजिस्टर कहते हैं। तो इसके फ्रंट कवर पे वेसल्स नेम, पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री, ओनर्स नेम, एड्रेस सब लिखा होता है। तो आजकल आपके पास यस मैनी शिप्स देयर आर नो कार्गो गियर, गियरलेस शिप्स हैं, तो हो सकता है यू मे नॉट बी एबल टू सी दिस चेन रजिस्टर। तो सर्टिफिकेट्स हैं, एक दो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई प्रोविज़न क्रेन है उसका सर्टिफिकेट, जो एंट्रीज़ हैं कैप्टन साहब ने अपनी फाइल में रखी। अदरवाइज प्रीवियसली मोस्ट ऑफ द शिप्स हैड क्रेन्स, डेरिक्स, वेरी फ्यू शिप्स वर देयर व्हिच वर गियरलेस। तो ये रजिस्टर शिप्स पे होता था। सो डोंट स्टार्ट वंडरिंग, मोस्ट ऑफ यू मे नॉट हैव सीन, बट कोई आपको पूछे कि सर ठीक है हमारे गियर ही नहीं था, तो फिर इतना रजिस्टर रखने की क्या जरूरत है, एक दो क्रेन्स तो हैं, एक आधी क्रेन तो है। तो बेसिकली चेन रजिस्टर इज जस्ट अ रजिस्टर ऑफ ऑल दिस, कि आपके पास कौन सा गियर है, कब टेस्ट किया, कब वो ड्यू है, सारा कुछ उसके अंदर है। सो रजिस्टर इन फॉर्म 2 shall be maintained and record of particulars of test, examination and heat treatment shall be entered as required by regulation। ये आपके डॉक लेबर रेगुलेशन नंबर है 41, 47, 49। तो नो नीड, अगर आप रिमेंबर करते हो गुड, नहीं भी करते हो डजंट मेक अ डिफरेंस, यू कैन जस्ट मेंशन एज पर द डॉक सेफ्टी रेगुलेशंस that this register in the form means it is a specific form, it's a specific फॉर्मेट है उसका। ये नहीं कि हमने चेन रजिस्टर अपनी मर्जी से एक रजिस्टर बना लिया, उसके ऊपर कॉलम बना दिए, नो। हर चीज का स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, isn't it? And shall be entered in it, इसके अंदर लिखा क्या क्या जाएगा, and it is to be maintained, it is to be kept and maintained, and सारी एंट्रीज भी होनी चाहिए ताकि कोई भी किसी भी कंट्री में कोई भी बंदा आके आप इसका चेक कर सकते हो। सो बेसिकली इट हैज गॉट 3 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। एंड पार्ट 1 इज, आई विश अगर मेरे को पता होता तो मैं इसकी कहीं से कॉपी निकाल के आपको दिखाता, बिकॉज आवर टाइम इट वाज वेरी कॉमन, सो नाउ इट इज डिफिकल्ट, बट अदरवाइज इट इज जस्ट इमेजिन दैट यू हैव अ sort of a register which is divided into 3 parts, and first part is initial periodical load test। फर्स्ट पार्ट इज द लोड टेस्टिंग। पार्ट 1 में जब आपकी पीरियोडिकल लोड टेस्टिंग मीन्स एवरी 5 years, और इफ द क्रेन हैज अंडरगॉन रिपेयर, दिस इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिकल, मीन्स एवरी 5 years जब आप करोगे तो इसकी एंट्री पार्ट 1 में आ जाएगी। पार्ट 1 में और सिर्फ यही लिखेगा, डेट ऑफ टेस्टिंग, सर्वेयर्स नेम, प्लेस, दैट्स ऑल, स्टैंप लगा देगा, एंड इन देयर एनुअल थॉरो एग्जामिनेशन। सो थॉरो एग्जामिनेशन तो होगा ही टेस्टिंग से पहले। एंड पार्ट 2 में इनिशियल पीरियोडिकल लोड टेस्ट ऑफ लूज गियर एंड एनुअल थॉरो एग्जामिनेशन। सो पार्ट 1 में लिफ्टिंग गियर का पूरा टेस्टिंग एंड एग्जामिनेशन, एंड पार्ट 2 में लूज गियर का एनुअल आई मीन लोड टेस्टिंग एंड एनुअल थॉरो एग्जामिनेशन। सो जब टेस्ट होगा वो तो 5 साल में एक एंट्री आएगी, एनुअल एग्जामिनेशन की हर साल एंट्री आएगी। सो यू कैन वेल इमेजिन कि आपने एक रजिस्टर रखा है जिसके अंदर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाया। पार्ट 1 में लोड टेस्टिंग एंड थॉरो एग्जामिनेशन ऑफ द
नंबर 1 क्रेन, नंबर 2 क्रेन, नंबर 3 क्रेन, एंड पार्ट 2 में अबाउट द लूज गियर, एंड पार्ट 3 बेसिकली एनीलिंग ऑफ चेन्स, रिंग्स, हुक्स, शैकल्स, उसमें हम एनए लिख देते हैं, नॉट एप्लीकेबल। क्यों? टुडे एनीलिंग इज बेसिकली इज अ प्रोसेस। अगर आपका जो कार्गो गियर है, कोई इक्विपमेंट है, शैकल्स हैं, कोई प्लेट्स हैं, कोई एनीथिंग, if it is not made of mild steel, if it is made of other than mild steel, wrought iron, cast iron का बना हुआ है, उसके लिए एनीलिंग चाहिए होती है। But for mild steel MS, so most of the cargo gear today is made of mild steel. So mild steel को एनीलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। एनीलिंग is just a heating up, कि आप उसको हीट अप करते हो टू 500-600 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन स्लोली लेट इट कूल, सो दैट उसके अंदर कोई फ्लॉ हो, कोई स्ट्रेस, लॉक्ड अप स्ट्रेसेस आर देयर, वो सारा ठीक हो जाता है। तो पार्ट 3 नॉर्मली इवन फ्रॉम आवर टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम बैक, जब से माइल्ड स्टील चला है, ऑल दिस गियर इज मेड ऑफ माइल्ड स्टील। सो उसके लिए पार्ट 3 आप ये लिख सकते हो, पार्ट 3 में एनीलिंग if it is required, then only the entry is required, but none of the parts are made, so we write NA। अब ये तो हमने तीनों एंट्री कर दी। अब ये तो बात बनी नहीं कि यार उसने कार्गो की कौन सी क्रेन टेस्ट की है, सो वो आपका सर्टिफिकेट में पूरी डिटेल आएगी। सर्टिफिकेट्स इन द फॉर्म स्पेसिफाइड, कि पूरा फॉर्म का एक फॉर्मेट है, नेम, प्लेस, दिस दैट, क्या क्या है, वो सारा उस स्पेसिफिकेशन टाइप का फॉर्म जो है वो आपको सर्वेयर देगा फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ जब आपने एग्जामिनेशन किया है, टेस्टिंग की है। ये सारे फॉर्म्स के अलग अलग, फॉर्म 3, 4, 5, 6, तो उसके अंदर वो जो दैट इज एक्चुअल सर्टिफिकेट। वीक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 क्रेन को मैंने टेस्ट किया है, कितने एंगल पे किया, कितना प्रूफ लोड लगाया है, क्या क्या उसके अंदर हमने देखा है, सारा कुछ वो उस फॉर्म में आ जाएगा। वो सर्टिफिकेट आप रजिस्टर के एंड में लगा देते हो, सेल्फ एडेसिव स्ट्रिप्स होती है वहाँ पे, आप उनके साथ उसको वहाँ लगा देते हो। जैसे ही न्यू सर्टिफिकेट आया, पुराने को आप निकाल देते हो, न्यू सर्टिफिकेट। सो यू नो दैट योर ऑल द लिफ्टिंग गियर और ऑल द कार्गो गियर इज बेसिकली एग्जामिन, टेस्टेड, एंड वो रजिस्टर कोई भी अथॉरिटी आके चेक करे सो कैन सी दैट। तो आपके पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज चेन रजिस्टर, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ चेन रजिस्टर, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो, so this is the enough material कि chain register is basically a record of all your lifting gear appliances, of their testing, their examination, and जैसे जैसे मैंने previously कहा, it contains, और it is basically called register of machinery chains, and this thing, उसके front cover पे name of the vessel, port of registry, owner's name, and then it is requirement भी है, register in form 2 is to be maintained, and record of particulars of test and examination of lifting appliances. So basically this register consists of all these tests according to these regulations, and then comes the contents. It has basically got 3 parts, part 1, part 2, part 3, and then chain register certificates to be attached in various forms for all these things. So अगर आपको ये फॉर्म याद भी नहीं रहते कौन सा फॉर्म है, then you can write one line कि certificates for various tests and examination in the specified forms to be attached with the at the end of the register. सिंपल, कितना सिंपल क्वेश्चन है, 12 मार्क्स का, वेरी कॉमन। चेन रजिस्टर काफ़ी कॉमन देखा मैंने पास्ट पेपर्स में कि ये क्या चीज़, बट लॉट ऑफ टाइम पीपल गेट वरीड, क्यों, उन्होंने आपने देखा ही नहीं, तब क्या होगा। एंड दिस इज टू बी केप्ट ऑन बोर्ड, प्रोड्यूस्ड ऑन डिमांड फॉर इंस्पेक्टर and retained for at least 5 years। जैसे आपने नया रजिस्टर किया तो इसको पुराने वाले को एटलीस्ट 5 years तक आपको रखना है। And no lifting appliance loose gears shall be used for dock work unless the required entry has been made in the register। अब ये जो कैप्टन साहब जब जाएंगे चीफ ऑफिसर हैं, so they make sure that all the gear is tested जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। Why? Nowadays every port, most of the port, European, US ports and all that, these people come and check प्रूफ लोड्स। नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रूफ लोड, कि कितना प्रूफ लोड लगाया जाता है, सेफ वर्किंग लोड। अगर आपके गियर का, आपकी क्रेन, इफ़ यू आर टेकिंग अ क्रेन फॉर टेस्टिंग जिस फॉर 20 टन, देन द गियर इज टू बी प्रूफ लोड उसके ऊपर सेफ वर्किंग लोड प्लस 25% एक्स्ट्रा। सो 20 टन की क्रेन है तो 25 टन का प्रूफ लोड, इट विल बी टेस्टेड टू 25 टन।
20 to 50, only 5 ton extra. And if the say working load is 50 ton की crane चाहिए तो उसके ऊपर 10% extra. So 50 ton crane will be tested only to 55 ton. Okay, so this is, इसको भी थोड़ा सा याद कर लीजिए कि what are the proof loads and what is the limit and what are the specifications की किस gear पे कितना proof load लगना चाहिए. Annealing, जो मैं कह रहा था, annealing in metallurgy and material science is a heat treatment that alters a material to increase its ductility and make it more workable. So it involves heating a material to above its critical temperature, maintaining a suitable temperature and then cooling. So basically आप उसको heat up करते हो एक temperature पे, उससे अंदर उसके जितने flaws हैं, जितने भी कहीं पे कुछ locked up stresses हैं, वो सारे उस मटेरियल में से निकल जाएंगे. Then you let it cool down slowly. So this is basically used to be for different type of irons, casting, cast iron, wrought iron के लिए. So annealing can induce ductility, soften material, relieve internal stresses, refine the structure by making it homogeneous and improve cold working properties. ठीक है? So that's probably all. And regarding your requirements for the lifting appliances, thorough examination and उसकी record keeping जो है वो हमने क्या करा. अब थोड़ा सा एक reporting of accidents. Now, sooner or later, of course, I don't wish that you should have any accident or स्टीविल और किसी की भी उंगली पे लगे, बाजू में लगे, टांग में लगे. It should not happen. But safety, it does not come automatically. It's again a process of कहते हैं ना गुड थॉट प्रोसेसिंग, कि एक सेफ एनवायरनमेंट में काम करना और सेफ्टी से करना, देन ओनली द सेफ्टी अकर्स, इजंट इट? ऑटोमेटिकली तो सेफ्टी नहीं आती. सो अगर बाई चांस आपका किसी का भी किसी स्टीविडोर को किसी को भी लग जाती है, सो देयर इज अ प्रोसीजर. उसका नोटिस ऑफ एनी एक्सीडेंट इन अ डॉक विच ईदर कॉजेज लॉस ऑफ लाइफ और it disables a person from work on which he was employed for the rest of the day or shift in which the accident occurred. तो उसका जो है मैसेज उसके नियर वन को, जो भी उसका नेक्स्ट ऑफ किन है, इट शुड बी सेंड बाय टेलीग्राम, टेलीफोन और स्पेशल मैसेंजर विद इन 4 hours ऑफ द अकरेंस. सो वैसे तो छोटे मोटे एक्सीडेंट ठीक है, बंदे को सबसे पहली चीज़ तो इससे पहले भी आपने क्या याद रखा कि बाई चांस इफ एक्सीडेंट है तो पेपर वर्क पे नहीं चले जाना कि भाई उसको बुलाओ या फोरमैन को बुलाओ एंड ऑल. सबसे पहली चीज़ क्या है? What action you will take first and foremost? What will be the first action will you take if somebody gets hurt, some accident takes place? Inform others. Anything else? Imagine yourself, you are third officer on watch. मैंने एक स्टीविल हो रहा है, उसकी टांग में लग जाती है, कुछ भी कॉमिंग से नीचे, या पाँव मुड़ जाता है उसका, या बाजू टूट जाती है. Inform the duty officer. अरे आप तो ड्यूटी ऑफिसर हो, अभी तो आप ड्यूटी ऑफिसर, आपको कैडेट होना रहे हो आप इस क्लास में, तो बन गए थर्ड ऑफिसर हो मेरे सामने. सबसे पहले बच्चे फर्स्ट एड बॉक्स लेके जाना. सबसे पहले तो उसको मैं फर्स्ट एड दूंगा, इजंट इट? ये तो है नहीं कि बंदा उधर पेन से या तड़प रहा है और तुम उसको जा रहे हो कि इन्फॉर्म करने के लिए, अच्छा या ठहर में पहले तेरे नेक्स्ट रिलेटिव को बुला के लेके आता. नो. सो फर्स्ट थिंग इज नेचुरली इफ इट टेक्स प्लेस इन पोर्ट, सो आवर ड्यूटी इज टू फर्स्ट प्रोवाइड. इसीलिए आप ये फर्स्ट एड का कोर्सेज करते हो सारे, बेसिक फर्स्ट एड. अगर उसका कहीं से ब्लड निकल रहा है उसको रोकने की कोशिश करें. आपके पास शिप में जो हॉस्पिटल है, व्हाटएवर इक्विपमेंट यू हैव, सो फर्स्ट वी अरेंज फॉर दैट. इन द सेम टाइम जो भी इंचार्ज है, पर्सन है, फोरमैन है, कोई भी है, एजेंट कोई भी आपको दिखता है तो वी आस्क. आजकल तो वॉकी टॉकी है, यू कैन इन्फॉर्म चीफ ऑफिसर, मास्टर, सो दे विल स्टार्ट ऑल्सो वर्किंग. दे विल कॉल द एजेंट, दे विल कॉल फॉर एम्बुलेंस. सो फर्स्ट थिंग इज द लाइफ, कि पहले लाइफ को कैसे बचाना है. पेपर वर्क तो करना है, वो तो बाद में. ये नहीं कि पहले पेपर वर्क बैठ गए और बाद में बंदा ही नहीं रहा तो फिर क्या फ़ायदा. फर्स्ट थिंग इज दैट कि आई विल लुक इनटू इट, आई विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल फर्स्ट एड. हाउ कैन वी
सेव द लाइफ फर्स्ट एंड देन अगेन उसको इंटीमेशन जो भी देनी है, जैसे भी normally we don't have to run around and give a telegram or telephone. So normally what we do, we inform the stevedores in charge, we inform the agent of course through the master, and agent जो है वो ये सारा काम उसको पता है किसको किसको इंटीमेट करना. Then you have to inform the inspector, relatives of the workers when the accident causes loss of life to the dock worker or is likely to be disabled. हाँ, loss of life हुआ फिर प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो जाता है. So आपके लेवल पे, थर्ड ऑफिसर, ड्यूटी ऑफिसर के लेवल पे, फर्स्ट थिंग आई विल प्रोवाइड द फर्स्ट एड, मेक श्योर दैट जो भी है कुछ उसके ऊपर गिरा है उसको हटाएं, उसको सेफ्टी से रखें, उसको सेफ जगह पे लेके जाएं, सेंडिंग टू द हॉस्पिटल, एंड देन इन्फॉर्म द अदर पीपल विल डेफिनेटली टेक केयर. बट मेरे को भी पता होना चाहिए, नहीं कह सकते अच्छा सर मैंने चीफ ऑफिसर कैप्टन को इन्फॉर्म कर दिया दैट्स ऑल मेरी जॉब खत्म. नो, एग्जाम में तो दे वांट यू टू नो कि आप क्या क्या करोगे. सो इन केस ऑफ फैटल एक्सीडेंट्स you have to inform the officer in charge of the nearest police station. Now आप यहाँ वंडर करोगे सर मैं कैसे इन्फॉर्म करूँगा शिप पे, isn't it? तो अगेन उसका प्रोसीजर है कि yes we'll follow the procedure. कि आप चीफ ऑफिसर को इन्फॉर्म करते हो, चीफ ऑफिसर कैप्टन का आप साहब को इन्फॉर्म करता है, कैप्टन एजेंट को बुलाता है. एजेंट्स विल डू द लोकल बिकॉज ही इज अ लोकल पर्सन, ही नोज लोकल रेगुलेशंस. अब बॉम्बे में कुछ होता है तो एजेंट विल कम एंड ही नोज बॉम्बे में येलो गेट जाना है, कौन से पुलिस स्टेशन जाना है, किसको बताना है, क्या करना है, isn't it? So basically आप इनिशिएट करोगे सब, तो इट विल गो. आपको भी पता होना चाहिए मेयर पुलिस स्टेशन हैज टू बी इन्फॉर्म डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और इफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही डायरेक्ट्स द एसडीएम. तो ये तो लीगल प्रोसीजर तो चलेगा ही चलेगा. लॉस ऑफ लाइफ तो डेंजरस, आज कहीं पे भी एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, फायर भी लगती है, तब भी देखो पुलिस आ जाती है. तो देन दे सी कि भैया क्यों हुआ, कैसे हुआ, वाई, वो तो केस चलेगा. सो इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स फॉलिंग अंडर क्लॉज बी द इंजर्ड पर्सन शैल बी गिवन फर्स्ट एड एंड देयर आफ्टर इमीडिएटली ट्रांसफर टू हॉस्पिटल और अदर प्लेस फॉर ट्रीटमेंट. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बंदे को लगी आपने कुछ नहीं किया. सही समटाइम जैसे आने सर ठीक है हम ठीक है, नहीं भैया इधर आओ, बाद में जाके वो बदल जाएगा. अरे मेरे को किसी ने पूछा ही नहीं, मेरे को किसी ने ये नहीं किया, मेरी उंगली में ब्लड निकल रहा था. नो. ओके, सो व्हेन यू आर ड्यूटी ऑफिसर यू हैव टू हैंड ओवर दैट पर्सन टू जो भी उनका इंचार्ज है प्रॉपरली, कि ये ले भैया अगर चाहिए वेट. अभी वो लेबर लोग होते हैं कई बार गरीब होते, तो अगर आप उसकी एक बैंडेज कर दोगे, एंटीसेप्टिक क्रीम लगा के या कुछ भी लगा के, ही फील्स वेरी हैप्पी. हमारे हॉस्पिटल में तो है, ये चीज़ें तो हैं. इस चीज़ का आपको सबसे पहले ध्यान देना है बिफोर कि हाँ यार स्टार्ट थिंकिंग ऑफ पुलिस एंड एसडीएम एंड ऑल दैट. वो प्रोसेस तो चलेगा ही चलेगा, वो तो मेरे को पता होना चाहिए. सो वेयर एनी एक्सीडेंट कॉजिंग disablement subsequently result in the death of a dock worker, then notice in writing to the death shall be submitted to the authorities within 72 hours after the death. So within 72 hours, again this is procedure is not that you will go to somebody, agent, through the agent, through जो भी company, सारा कुछ है उनके पास, सब प्रोसीजर शिप से इंफॉर्मेशन जाएगी. so they will do all these things. okay, so this is what we have about your डॉक लेबर की जो रेगुलेशंस कहते हैं. तो मैं इसकी टोटल आई थिंक आई हैव सम कॉपी, वो भी भेज दूंगा, गो थ्रू दैट. तो काफ़ी वो डिटेल में है सब कुछ, बट एटलीस्ट इट इज़ गुड टू गो थ्रू वंस. ये उसकी जिस्ट है. दीज आर द मेजर थिंग्स विच एज अ ड्यूटी ऑफिसर यू शुड बी अवेयर. एंड कई बार इस पर क्वेश्चंस भी. एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन सो फार ऑन व्हाट वी हैव डन? क्या कहते हो? All good with everybody? Yes sir. चलो, तो ये तो था आपका जहाँ तक डॉक लेबर. नाउ आई वांट टू स्टार्ट विद द IMDG कोड. आज हम मैट नहीं करेंगे, मैट आई विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीक, बिकॉज मैट की जो वेदर कोडिंग है उसको थोड़ा हमें लंबा टाइम चाहिए. नो पॉइंट डूइंग. सो आई वांट टू स्टार्ट विद द IMDG जिस पे भी एक क्वेश्चन रहता है. तो ये नोट्स भी मैं आपको भेज दूंगा ऑन योर मेल. एंड टुडे लेट्स सी व्हाट इज दिस डेंजरस गुड्स कोड. ठीक है, IMDG कोड है क्या चीज़. एंड
sooner or later, and आप करके भी आए हो, the guys who have done the container ships, you must have carried these dangerous goods, isn't it? कुछ आइडिया है ये क्या होता है? What is this dangerous goods? क्या आता है आपके मन में? Anybody? Cargo which is dangerous for environment and personal. अगर Okay. डायरेक्ट कांटेक्ट में आए उनसे तो वो हार्म करेंगे. Okay. Anything else? Sir, like explosives, corrosive elements also, acids. Okay. और कुछ?